نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1315 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,70,817، سندھ میں 2,57,730، خیبر پختونخوا میں 72,003، بلوچستان میں 19,038، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 44,106، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,106 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 89,12,918 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,086 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,44,406 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,538 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 33 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,837 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,337، سندھ میں 4,335، خیبر پختونخوا میں 2,070، اسلام آباد میں 496، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 297 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کرونا وائرس سے 33 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,837 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,78,797 ہو گئی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم عمران خان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی کامیابی کے 2 سال مکمل ہونے پر پوری قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کے تحت گرفتار بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن مظلوم عوام کشمیر کی قربانی کی قیمت پر نہیں۔ اپنے علاقے میں بھارتی طیارے گرا کر ہم نے تمام جارحیت پسندوں کے خلاف عزم اور برتری کا مظاہرہ کیا۔ میں اپنی بہادر افواج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ امن کے لیے کھڑے ہیں، بھارت کے ساتھ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے LOC کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ مزید پیش رفت کے لیے ایک قابل ماحول بنانے کی ذمہ داری بھارت پر ہے۔ 27 فروری 2019 کے روز بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کی مناسبت سے DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 27 فروری پاکستان کی مسلح افواج کے تجدید عہد کا دن ہے کہ قوم کی حمایت سے تمام خطرات کے خلاف ہمیشہ مادر وطن کا دفاع کریں گے۔ یہ ایک قوم کی عددی برتری نہیں بلکہ عزم و حوصلہ تھا، کیونکہ پرعزم قوم کا ہمت اور حوصلہ ہی فتح دیتا ہے۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی جنگی طیارے تباہ کر کے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 2 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقریب ہوئی، جس میں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا تو ان کی گھن گرج سے فضا گونج اٹھی اور دلوں پر رعب و ہیبت طاری ہو گئی۔ شائقین نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خوب داد دی۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور خطے میں سلامتی چاہتا ہے۔ دنیا نے دیکھا پاکستان نے امن کے لیے بھارتی پائلٹ کو واپس کیا، اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں اور وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ مجاہد انور خان نے کہا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے ہماری افواج نے وطن کا بھرپور دفاع کیا۔ ہماری افواج کو ملک کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا ہوگا، اپنے دفاع سے بے خبر نہیں، اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ Pakistan is a responsible and a peace-loving nation, and its armed forces are prepared to defend its territorial integrity at all costs. Our efforts for global and regional peace, particularly in Afghanistan, Middle East, and UN peacekeeping missions, are being acknowledged by international community. One such manifestation of peace was witnessed by the world through unconditional return of the captured Indian pilot by the government of Pakistan.
भारतीय पायलट अभिनंदन का नया बयान मंजर आम पर आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मालूम नहीं अमन लाने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अमन होना चाहिए। किसी अदावत को जारी रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है हमें सोचना चाहिए। पाक फौज को बहुत पेशावराना और निडर पाया। भारतीय पायलट अभिनंदन ने अपने नए बयान में कहा कि ऊपर से नीचे आते हुए पैराशूट में दोनों मुल्क देखे, मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। जब गिरा तो मुझे पता नहीं था पाकिस्तान में हूँ या अपने देश भारत में। मुझे चोट लगी जो काफी गहरी थी और मैं हिल नहीं पा रहा था। अभिनंदन का कहना था कि जब मुझे लगा अपने मुल्क में नहीं हूँ तो भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए और उनका जोश काफी ज्यादा था। वो लोग चाहते थे मुझे पकड़ लें। उसी लम्हे पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और वहाँ से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेकर गए जहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। भारतीय पायलट ने मजीद कहा कि पाक फौज बहुत पेशावराना और काबिल तारीफ है। मुझे दुश्मनियां परवान चढ़ाने की कोई वजह नजर नहीं आती। चाहता हूँ हमारे देश में अमन रहे और हम अमन में रह सकते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, बट मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। एंड आई सी नो रीज़न फॉर अस टू कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़। मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई हुकूमत करप्शन में सबसे आगे है और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। धांधली ज़दा हुकूमत ने मुल्क में बहरान पैदा किया है और आवाम को महंगाई के तूफान में डिबो दिया है। पाकिस्तान में आज महंगाई अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। कठपुतली हुकूमत में सलाहियत नहीं कि हुकूमत चला सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को नालायक व नाजायज हुकूमत से बचाएंगे। सी पैक की बुनियाद पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी ने रखी थी। सी पैक का नाम इसलिए रखा कि पसमानदा इलाके को फायदा पहुंचाना था, लेकिन नालायक हुकूमत सी पैक मंसूबा खत्म करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपी ने कहा कि सियासतदान हो या अदलिया, फौज और सरकारी मुलाजमीन, जब सबके लिए एक कानून होगा तभी करप्शन के नासूर को खत्म कर सकेंगे। बिलियन ट्री अलीमा बाजी की सिलाई मशीनों समेत जगह जगह करप्शन है। इस नालायक हुकूमत का हर मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब में फतह ने साबित किया आवाम पीटीआई के साथ नहीं बल्कि पीडीएम के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने जाती उम्रा में ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमजा शहबाज ने बहादुरी के साथ झूठे केसेस का मुकाबला किया। उनकी रिहाई पर बहुत खुशी हो रही है। साथ मिलकर पार्टी के लिए मजीद काम करेंगे। उन्होंने 2 साल नाहक जेल काटी। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पीटीआई अरकान भी तहरीक इंसाफ को अब पसंद नहीं करते, क्योंकि इमरान खान की कारकर्दगी से उनके वोट बैंक पर असर पड़ा है। इमरान खान को वोट देने का मतलब वोट चोर को जितवाना है। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई में हर सूबे से बगावत हो रही है। नायब सदर नून लीग का ये भी कहना था कि धांधली के बावजूद हुकूमत डस्का का इलेक्शन नहीं जीत सकी। अब एक हल्का खुला तो सारी हकीकत सामने आ गई। हुकूमत डस्का में दोबारा इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का चैलेंज इसलिए कर रही है कि चोरी पकड़ी गई है। उनको डर है कि हुक्काम पोल खोल देंगे और पकड़े जाने वाले छोटे चोर बड़े चोरों का बता देंगे। एम्पायर को अगवा करने के बाद भी इलेक्शन हार गए। दोबारा इलेक्शन से पीटीआई की जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को रोकने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां अनकरीब शुरू हो जाएंगी। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश न आए। पंजाब में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। लाहौर कलंदर्स ने अफगानिस्तान के लीग स्पिनर राशिद खान की जगह नेपाल के लीग स्पिनर संदीप लिमिचाने को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। संदीप ने एडिशन 2019 में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए एचपीएल पीएसएल में अपना डेब्यू किया था। नेशनल ड्यूटी की वजह से राशिद खान लाहौर कलंदर्स को अब दस्तयाब नहीं रहे। उन्होंने लीग के इब्तिदाई 2 मैचेस में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की थी।
पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 9वें मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के 9वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 195 रन बनाए। कराची किंग्स ने बाबर आजम की जबरदस्त इनिंग्स की बदौलत मतलूबा हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कराची किंग्स की जानिब से शर्जील खान ने टीम को जारहाना आगाज फराहम किया, लेकिन वो 27 रन बनाने के बाद आउट हुए, जिसके बाद बाबर आजम ने जोए क्लार्क के साथ मिलकर 97 रन की शराकत कायम की। इस दौरान जोए क्लार्क ने PSL में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। वो 54 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम अपनी फॉर्म बहाल करते हुए एक और निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। कॉलन इंग्राम 6 रन बनाने के बाद आउट हुए। बाबर आजम 90 रन पर नॉन आउट रहे। बिल्कुल, जैसे आपने बात की पिछले मैच की, तो जिसमें जो हमारी पार्टनरशिप लगी थी उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, और मेरे ख्याल से जो शर्जील की इनिंग्स थी आउटस्टैंडिंग थी। मेरा थोड़ा सा जहाँ मेरे ख्याल से पिछले मैच में रन्स कम थे, 20 to 25 रन्स, जिसकी वजह से हम मेरे ख्याल से मैच लूज़ करके बिल्कुल उसी कॉन्फिडेंस को लेके आज हम गए थे। और पॉजिटिव क्रिकेट थी कि जैसे मैच का सिनेरियो उसी हिसाब से हमने लेके चलना, और वैसे ही हम चले। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से 2 विकेटें शाहनवाज धानी के हिस्से में आईं और 1 विकेट सुहेल खान ने हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से पिछले तीनों मैचेस में नाकाम रहने वाले ओपनर क्रिस लैन को दोबारा मौका दिया गया, लेकिन इस बार उन्होंने टीम को मायूस नहीं किया और 14 गेंदों पर 32 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर आउट हुए, और कप्तान मोहम्मद रिजवान 32 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जेम्स विंस 29 गेंदों पर 45 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर अरशद इकबाल का शिकार बने। ताहम बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने सुस्त रवि से बैटिंग की, जिसके बाइस मुल्तान सुल्तान्स 200 का हिंसा अबूर करने में नाकाम रहे।